Today we will be covering asymmetric encryption and digital signatures. So yesterday we have covered that if we have a plain text that is converted into ciphertext and then back to plain text. To convert plain text into ciphertext, we have a key, and to revert back ciphertext into plain text, we have a key. This concept is called as encryption or encryption, and this is called as decryption. But in this case the key will be same, means the key we use to encrypt plain text into ciphertext, we need that same key to decrypt into plain text. But in today's topic we will be learning about two keys, that is public and private key, that is also known as asymmetric encryption. सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें एक ही की थी, ठीक है, एक ही की है, और वो की मेरे को पब्लिकली दूसरे बंदे को देनी पड़ती थी अगर उसने उसको डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि वो की जो पब्लिक की है, जो इंटरनेट पे है, वो अगर की किसी के हाथ में आ गई तो इजीली टेक्स्ट को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है, दैट इज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इसमें क्या है कि ये प्लेन टेक्स्ट है, इसको हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, एंड वी हैव अ की दैट इज पब्लिक की। सेम अगर हमने साइफर टेक्स्ट को बैक टू प्लेन टेक्स्ट करना है, वी हैव अ प्राइवेट की। हियर वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ टू कीज, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट। if you want to share a text with 10 people, ठीक है, तो you have to provide your public key to those 10 people, ठीक है। बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी और के पास, मतलब द 11th person have a public key, सो वो भी डाटा को डिक्रिप्ट कर सकता है। देन वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट की। इसमें क्या है कि आपके पास दो की होगी, सबसे पहले होगी प्राइवेट की, जो आपकी ही होगी, यूज़र की ही है, दैट प्राइवेट की डजंट बिलोंग टू एनी यूज़र। अगर वी हैव 4 यूज़र तो हर यूज़र के पास अपनी प्राइवेट की है, इसकी प्राइवेट की ये शेयर नहीं कर ये यूज़ नहीं कर सकता, इसकी प्राइवेट की ये यूज़ नहीं कर सकता, सो नोबडी कैन यूज़ एनीबडीज प्राइवेट की। तो प्राइवेट की सिर्फ आपके पास अपनी है, ठीक है। अगर हमने डाटा सेंड करना है तो हम पब्लिक की यूज़ करके उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, और जो यूज़र है, एंड यूज़र है, वो अपनी प्राइवेट की को यूज़ करके डाटा को डिक्रिप्ट करेगा। तो इसमें क्या है कि जब डाटा पब्लिक की तो इसके पास है ही, ऑलरेडी पब्लिक की हमने शेयर की हुई है, तो अगर हमें डिक्रिप्ट करना है तो हम प्राइवेट की को यूज़ करके डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज this is the online tool that we will be using to encrypt or to generate public key, to generate private key, and to convert the text encryption and decryption. Let's see. Is it visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. You just need to press the generate keys. It will generate public key and private key for you. Okay. After that, you just need to enter the text that you want to encrypt. For example, I want to encrypt
there is a concept if you want to encrypt it, you have two keys, that is public key and private key. If I encrypt the data with public key, other person can decrypt with private key. If I encrypt the data with private key, other person can decrypt with public key. So it's a corresponding, like अगर मैं public key से encrypt कर रही हूँ तो next person जो है वो private key से करेगा, अगर मैं private key से कर रही हूँ तो next person है जो public key से करेगा. ठीक है, it's up to you कि आपने यहाँ पे कौन सी की डालनी है, private key डालनी है या public key डालनी है. जौन सी की आप डालोगे, फॉर एग्जाम्पल आप पब्लिक की डाल रहे हो तो नेक्स्ट पर्सन को जिसको डीक्रिप्ट करना है वो वाला पर्सन उसमें प्राइवेट की डालेगा. लेट्स पुट पब्लिक की हियर. We have different modes here, RSA, EBC, and all these are the different type of cyber type. Okay, we will be choosing RSA and we will be encrypting this data. This is the encrypted data that you will be sending to the other person, or this is the encrypted data that is over the network. Okay, if I want to decrypt this data, can you tell me which key will be here, private or public? Private होगा. Yes, बिकॉज हमने जो इंक्रिप्ट किया था वो पब्लिक की से किया था, तो हम डिक्रिप्ट करेंगे प्राइवेट की से. We get our data back. So this is the asymmetric encryption in which we encrypt or decrypt the data using two keys, that is public and private key. Okay, we have an CLI tool also to encrypt or decrypt using the public or private key. Okay, we have used this tool in symmetric as well, we have used this tool in hashing as well. So asymmetric में भी इसको use कर सकते हैं, that is OpenSSL. उसके बाद हमने किया generate public key, generate private key. हम private key generate कर रहे हैं, private key की जनरेट कर रहे हैं. उसके बाद हमने मेंशन किया कि एल्गोरिदम कौन सी है और हमने प्राइवेट की को एक आउटपुट में स्टोर कर दिया. जो प्राइवेट की एक्सटेंशन होगी दैट विल बी PEM. ठीक है, तो दिस इज द की. जो किसी को समझ नहीं आएगी बिकॉज इट इनटू अ हैश वैल्यू और दे हैव जनरेटेड द की अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, अगर हमने पब्लिक की जनरेट करनी है, जो पब्लिक की है वो प्राइवेट की से जनरेट होती है. ठीक है, तो OpenSSL, ठीक है, पब्लिक आउट, प्राइवेट की देंगे, उसके बाद आउट करेंगे पब्लिक की. सो जो पब्लिक की है दैट इज ऑलवेज जनरेटेड विद द प्राइवेट की. दैट्स वाई द अदर पर्सन इज एबल टू डिक्रिप्ट ना. अगर मेरी अगर मेरी पब्लिक की आपके पास है और पर मेरी प्राइवेट की सिर्फ मेरी है, ठीक है, तो आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते ना. आपको कोई ना कोई बीच में ऐसा सिग्नेचर चाहिए या ऐसा पार्ट चाहिए जो मैच कर रहे हो. तो इसलिए जो पब्लिक की जनरेट होगी मेरी तरफ से दैट विल बी आउट फ्रॉम माई प्राइवेट की एज वेल. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है तो हमने इंक्रिप्ट किया प्राइवेट की को यूज़ करके डाटा को इंक्रिप्ट किया हमने. उसके बाद साइफर फाइल को रीड किया, तो दिस विल बी द डाटा दैट विल बी नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय एनीवन इफ इट गोज ऑन नेटवर्क और इफ इट गोज टू यू. यू नीड द again you need the key to convert that text into the plain text. ठीक है, so this is the parameters that is OpenSSL P की UTL. इनक्रिप्ट करना हमने पब्लिक की से प्लेन टेक्स्ट को ciphertext.dat में. ठीक है, दिस इज फॉर द इंक्रिप्शन. ओके, आफ्टर दैट हमने कैट यूज करके उस फाइल को रीड किया, तो ये वाली फाइल है, दिस फाइल विल बी सेंड ओवर टू द नेटवर्क. आफ्टर दैट जब आपके पास वो फाइल आ जाएगी तो आपके पास एक तो ये फाइल आएगी, एक आपके पास पब्लिक की आएगी. ठीक है, पब्लिक की वाली फाइल आएगी. तो आप पब्लिक की को यूज़ करके पब्लिक की को यूज़ करके और दिस फाइल को यूज़ करके आप उसको कन्वर्ट करोगे, डिक्रिप्ट करोगे और डिक्रिप्ट फाइल में स्टोर करोगे. ठीक है, anybody have any doubt in symmetric or asymmetric encryption? Mohan and Navneet, it is clear to you? Yes, ma'am.
सो नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नेचर. अब डिजिटल सिग्नेचर, व्हाट इज सिग्नेचर्स बेसिकली? Ma'am, it's sign. ओके, इट्स अ साइन. इट डिपिक्ट्स यू. आपके सिग्नेचर्स हैं जो हर थां पे चलते हैं. लाइक यू हैव अ सिग्नेचर. इफ दैट सिग्नेचर इज डिफरेंट देन यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ इन एनी प्लेस. ओके, अगर मेरे बैंक्स में सिग्नेचर है और इट्स लाइक एम कौर, तो वो हर थां पे एम कौर होना चाहिए. अगर मैं मुस्कान कौर पूरा लिख दूंगी तो वो सिग्नेचर इनवैलिड हो जाएंगे बिकॉज जो मेरे रजिस्टर्ड सिग्नेचर है दैट इज एम कौर. ठीक है, ऐसे ही एक हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर है जो डिजिटल वर्ल्ड में होते हैं, जो आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए होते हैं कि नहीं ये डाटा इसी बंदे ने सेंड किया है बिकॉज इसमें इसका डिजिटल सिग्नेचर है. ठीक है, तो इट्स लाइक अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल. हमने लास्ट टू लास्ट टॉपिक में कवर किया था टॉपिक ऑफ ए, जिसमें हमने ऑथेंटिसिटी किया था और CI ट्रेड में हमने इंटीग्रिटी किया था. तो जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं दीज कवर दीज टू फंडामेंटल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी. ऑथेंटिसिटी क्यों? क्योंकि आपके सिग्नेचर आपको ऑथेंटिक कर रहे हैं कि हाँ भाई दिस इज द पर्सन, ऑथेंटिकेशन हो रही है. और इंटीग्रिटी क्यों? क्योंकि जो डिजिटल सिग्नेचर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हैश वैल्यू. सो इसके लिए अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर ऑनलाइन कहीं पर अवेलेबल भी है तो वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता लाइक हैश वैल्यू. लेट्स सी हाउ. We have unsigned data. हमारे पास एक अनसाइंड डाटा है जो हमने सेंड करना है इंटरनेट पे. अनसाइंड डाटा मीन्स कि कोई भी प्लेन टेक्स्ट में डाटा. फॉर एग्जाम्पल वी आर सेंडिंग हाउ आर यू. ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हैश वैल्यू यूजिंग अ हैश फंक्शन. हैश फंक्शन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, MD5 SHA. ठीक है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ हैश वैल्यू. ओके, उसके बाद वहाँ पे एक की यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइवेट की. ठीक है, जो आपकी खुद की है प्राइवेट की यूज़ होती है. एंड कन्वर्टिंग दैट हम एक सिग्नेचर को रेडी करते हैं. ठीक है, और हमारे पास एक डाटा भी है. जब इंटरनेट पे ये डाटा जा रहा है, इन बिटवीन वी हैव अ हैकर. फॉर एग्जाम्पल उसको ये डाटा मिल गया, उसने इस डाटा को इनक्रिप्ट भी डिक्रिप्ट भी कर लिया. बट उस डाटा के साथ उसको अब एक और चीज मिली दैट वाज आवर सिग्नेचर. ठीक है, उस सिग्नेचर को अगर उसने चेंज करना है या उस सिग्नेचर को उसने डिक्रिप्ट करना है तो उसको प्राइवेट की चाहिए. दैट प्राइवेट की इज जस्ट विद आवरसेल्फ, उसके पास नहीं है. अगर वो डिफरेंट कीज भी यूज करेगा देन ऑल्सो ही कांट बी एबल टू डिक्रिप्ट द डाटा. ओके, अगर वो पब्लिक की के साथ जो ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे जो मैंने सबको सेंड किया अगर उसके पास भी वो है, अगर वो उससे भी उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा तो ही इज नॉट एबल टू डू इट बिकॉज हमने जो इंक्रिप्ट किया दैट इज विद प्राइवेट की. ठीक है, जब ये डाटा इस बंदे को जाएगा जिसको हमने एक्चुअली भेजना है डाटा, तो उसके पास पब्लिक की है. ठीक है, तो वो इसको ऑलरेडी इजीली कन्वर्ट कर पाएगा क्योंकि हमारी पब्लिक की में हमारी प्राइवेट की के कुछ पोर्शंस होते हैं. लाइक वी सेड ना दैट पब्लिक की जो है वो प्राइवेट की से ड्राइव्ड होती है. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स कि डिजिटल सिग्नेचर एक तो आपको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल सिग्नेचर्स अगर हैक भी हो जाए तो उसको कोई क्रैक नहीं कर सकता बिकॉज वो आपकी प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट किए गए हैं. और प्राइवेट की को सिर्फ और सिर्फ यूज़र के पास होती है, वो किसी और के पास नहीं होती. पब्लिक की इंटरनेट पे होती है बट पब्लिक की को यूज़ करके हम डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं बट सिग्नेचर्स को नहीं कर सकते. Anybody have any doubt in signatures, digital signatures? Navneet, Mohan.
So this is the CLI tool that is used to create created the digital signature that we can create. हमने लास्ट में एक प्राइवेट की जनरेट की थी, हमने उस प्राइवेट की को यूज़ करके अपने डिजिटल सिग्नेचर्स को क्रिएट किया, ठीक है. उसके बाद वो डिजिटल सिग्नेचर कुछ इस तरह दिखता है. दिस इज द डिजिटल सिग्नेचर. जब भी कोई डाटा इंक्रिप्ट होके लाइक इंक्रिप्ट करते हैं हम, या डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करके या प्राइवेट की यूज़ करके, दैट विल बी शोन इन दिस सिंबल्स. अगर हम ऑनलाइन टूल यूज़ करके करते हैं तो दैट विल बी लाइक इन लाइक दिस वन $456 जो हमने अभी देखा था, ठीक है. तो दिस डाटा इज़ नॉट रीडेबल बाय एनीवन, ठीक है. इसको रीड करने के लिए हमें हमेशा डिक्रिप्ट ही करना पड़ेगा अपनी पब्लिक की को यूज़ करके, ठीक है. और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वेरीफाई की है कि जो हमारे पास पब्लिक की थी और जो सिग्नेचर है वो ओके है कि नहीं है, मतलब वो डिक्रिप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. सो इट्स बेसिकली जस्ट टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर आउट ऑफ प्राइवेट की. और उसके बाद पब्लिक की यूज़ करके हमने उस डिजिटल सिग्नेचर को चेक किया है कि इट इज़ वेरीफाइड और नॉट, ठीक है. ओके, we have covered the topic of cryptography, in which we have covered hashing, symmetric or asymmetric encryption. You have heard about ransomware a lot, कि ransomware का अटैक हुआ है, लॉक हुआ है, सिस्टम लॉक कर दिया गया, ransomware है. तो ransomware बेसिकली जो वर्क करता है ना, दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द क्रिप्टोग्राफी दैट वी हैव रेड. So let's cover the topic of ransomware, how it works and how it is delivered to the user and how it actually decrypts or encrypts the data, ठीक है. Ransomware basically it's a part of a malware. Malware means malicious software या malicious code that we send to a user. There are many type of malwares like viruses, worms. हमने worms भी cover किया था जब हमने CI ट्रेड पढ़ा था कि अवेलेबिलिटी की फंडामेंटल तब इंट्रोड्यूस हुआ था जब worms वाला केस सारे इंटरनेट पे फैला था. सेम एज रैंसमवेयर है. रैंसमवेयर मालवेयर है. इट इज़ वेरी फेमस और कॉमन इन टूडेज डे, बट इट इज़ बेस्ड ऑन, अगर हम कहें ना कि रैंसमवेयर अपने आप आ गया सिस्टम में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आप किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करोगे, आप किसी चीज़ को डाउनलोड नहीं करोगे, तो नथिंग विल बी देयर इन योर सिस्टम. अगर आप खुद कोई ना कोई यूज़र गलती करता है, इसीलिए किसी ना किसी सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कत आती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस केस रैंसमवेयर. रैंसमवेयर बेसिकली क्या करता है, सॉफ्टवेयर इनक्रिप्ट करता है सिस्टम में, मतलब यूज़र के सिस्टम में जितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी फाइल्स है, जो भी पिक्चर्स हैं, वो सबको इनक्रिप्ट कर देता है. इनक्रिप्ट कैसे करेगा, यूजिंग अ की, प्राइवेट की. वो अपनी प्राइवेट की को यूज़ करके सारा कुछ इनक्रिप्ट करता है, ठीक है. उसके बाद वो एक रैंसम अमाउंट करता है कि अगर आप इतनी रैंसम पे करोगे देन आई विल गिव यू अ डिक्रिप्शन की, जिसको आप एंटर करोगे तो आप डाटा सारा डिक्रिप्ट कर लोगे. हमने देखा कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट को डाटा कैसे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है, ठीक है. तो दिस इज़ द ऑटोनॉमी ऑफ रैंसमवेयर, कि रैंसमवेयर सिस्टम में आता कैसे है, वर्क कैसे करता, और एंड में उसको हमने कैसे उसको डिक्रिप्ट करना है. सबसे पहले हमारे पास आता है डिलीवरी. डिलीवरी का क्या मतलब है कि आपको रैंसमवेयर भेजा कैसे जा रहा है, कि आपके पास डिलीवर कैसे हो रहा है. फॉर एग्जांपल आपके पास जो रैंसमवेयर है वो डिलीवर होगा विद दी फिशिंग लिंक, और आप खुद डाउनलोड करोगे मालवेयर में. एनीबडी हैव एनी डाउनलोडेड, क्या कहते हैं उसको, क्रैक्ड वर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट. कभी डाउनलोड किए क्रैक वर्जन्स इंटरनेट से? तो अगर आपको कोई लाइक टॉरेंट तो यूज़ किया होगा, बिट टॉरेंट यूज़ किया होगा. Yes, ma'am. हाँ, तो बिट टॉरेंट से आप जब डाउनलोड करते हो कोई चीज़, तो आपको कैसे पता कि ऑथेंटिक है कि नहीं है. अगर आप कोई इंटरनेट पे गेम भी खेल लो, जैसे कि अगर कोई गेम है जो बैंड है एंड यू नीड दैट गेम, ठीक है, तो आप गूगल पे जाके थर्ड पार्टी से वो डाउनलोड करते हो, ठीक है. तो आपको कैसे पता लगता है कि दैट गेम और दैट सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली अ करेक्ट वन और उसमें कोई मालवेयर या कुछ नहीं है. I guess as ma'am, I'm having a gaming laptop, and if I used to purchase a game that is very expensive, so I download it from third party apps.
So basically, if the game works properly and there is no malware, then from my point, it's a good working game. uh, some not like And that. sometimes the game has its own requirements, like some game demands uh, to download track tests, something like the softwares. So I just downloaded it and everything goes fine. इट्स लाइक यू डाउनलोड एंड देन यू चेक, अगर उसमें कुछ हुआ तो आपका सिस्टम तो गया। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो, पहली बात तो विंडो डिफेंडर उसको नहीं डाउनलोड होने देता अगर उसमें मालवेयर या कुछ है। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो तो उसके साइज़ को चेक करना। अगर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इट मीन्स कि उसके साथ एक सॉफ्टवेयर और भी डाउनलोड हो रहा है। थर्ड वन इज़ उसकी एक्सटेंशन, कि आप उसके एक्सटेंशन चेकआउट करोगे कि हाँ भी उसकी एक्सटेंशन क्या है। अगर वो आपके जो आपने गेम डाउनलोड करनी है उसके साथ में कोई और चीज़ भी डाउनलोड कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर एक कोई ना कोई मालवेयर या कोई ना कोई वायरस है। तो बेसिकली मालवेयर्स आपको सेंड करने का तीन ही तरीके हैं, लाइक दीज हैव द डिलीवरी पॉइंट्स। एक तो आपको फिशिंग मेल भेजी जाएगी लाइक दिस कि वी हैव रिसीव्ड योर पार्सल, वी हैव सेंड योर पार्सल। अगर आपने डेट और टाइम चेक करना और अराइवल लिस्ट चेक करनी है, अपने टाइम चेक करनी है, तो आप जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। बट दिस इज़ अ फिशिंग मेल कि अगर आपको पार्सल चेक ही करना है तो आप ट्रैक कर सकते हो ना, और जिप में नहीं होता, पीडीएफ में होती है। अगर आप कभी भी चेक करोगे ना, जो ओरिजिनल आपको आती है मेल आती है, दैट इज़ ऑलवेज, अगर आपके जो लाइक आपने जो बाय किया उसका जो बिल है या फिर उसके जो ट्रैकिंग ऑर्डर्स है, दैट इज़ ऑलवेज .pdf फाइल्स। ठीक है, तो जिप में भेजने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सो इस तरह आपको डिलीवरी के थ्रू कोई ना कोई सिस्टम में आपके आता है। अब सिस्टम में आ गया, ठीक है, इट्स डाउनलोड, बट इट्स नॉट इन योर सिस्टम नाउ। मतलब कि डाउनलोडेड है बट रन नहीं किया। आप अगर कोई पैकेज को डाउनलोड कर रहे हो ना, तो इट्स गुड, इट्स ओके कि अब तक आपने रन नहीं किया, इट मीन्स कि मालवेयर आपके सिस्टम में आया नहीं है, सिर्फ पड़ा है। ठीक है, जब आप इसको अनजिप करके रन करोगे ना, देन योर सिस्टम गॉट इन्फेक्टेड। इसलिए जब भी हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि आप डाउनलोड कर लो विंडोज़ में। इट्स नॉट ए इशू कि आप, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स में डाउनलोड करने में टाइम लगता है, क्योंकि ब्रिज है नेटवर्क, वो लाइक इट्स टेक अ ह्यूज टाइम टू डाउनलोड, बिट टॉरेंट डाउनलोड करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। दैट्स वाई वी से कि आप सिस्टम में डाउनलोड कर लो बट अनजिप नहीं करना और रन नहीं करना। उससे पहले आप उसको ड्रैग कर लो वीएम में। अगर आपको रन ही करना है, आपको चेक ही करना है कि हाँ भी इस सिस्टम में, इस सॉफ्टवेयर में मालवेयर है या नहीं है, तो गो टू द वीएम ना। अगर जाएगी भी तो वीएम मशीन जाएगी, आपकी ओरिजिनल मशीन नहीं जाएगी। ठीक है, सेकेंड इज एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अगर अब रैंसमवेयर है तो उसको कोई ना कोई एक्सप्लॉयटेशन या कोई ना कोई वर्नेबिलिटी चाहिए आपके सिस्टम में रन करने के लिए। ठीक है, अब सिस्टम की वर्नेबिलिटी क्या है कि आपका वर्जन छोटा है, जो वर्जन ऑलरेडी चल रहा है इंटरनेट पे, उसके अलावा आपके पास वर्जन कोई और है। ठीक है, उसके बाद या फिर आपके सिस्टम में कोई एक्सप्लॉइट है या कोई वर्नेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ वर्नेबिलिटी इन एफ FTP VS। FTP का सर्वर था, उसमें वर्नेबिलिटी थी, तो यू कैन बेसिकली ट्रांसफर अ फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बहुत सारी वर्नेबिलिटीज़ है, यू कैन चेक इट आउट कि आपके सिस्टम में वर्नेबिलिटीज़ कौन सी है, वर्नेबिलिटीज़ कौन सी नहीं है। सो अगर आपके सिस्टम में वर्नेबिलिटी है तो उस वर्नेबिलिटी को यूज़ करके आपका सिस्टम एक्सप्लॉइट होगा। ठीक है, वर्नेबिलिटी बेसिकली मीन्स वीकनेस या फिर कोई एरर। जैसे कि सिस्टम कोई भी सिस्टम है, अगर विंडोज़ भी है, एंड्रॉयड भी है, आईफोन भी है, तो उसके अपडेट्स आते हैं। वो अपडेट्स क्यों आते हैं? बिकॉज जो पुराना वाला अपडेट है ना, उसमें किसी ने बग ढूंढा या किसी ने वीकनेस ढूंढी है, इसलिए उसको पैच करने के लिए वो एक नया वर्जन निकालते हैं। बट सम पीपल थिंक कि यार अगर मैं डाउनलोड करूँगा तो मेरी स्पेस ज़्यादा जाएगी।
ठीक है, अगर मैं डाउनलोड करूँगा मेरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो दैट्स वेयर द वर्जन डिफरेंस। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, आपका वर्जन बैक एंड का है, तो अगर आपके सिस्टम में कोई मालवेयर है और उसका कोई वर्नेबिलिटी है, जो वर्जन आपके पास है अगर उसकी कोई वर्नेबिलिटी है, तो यू आर हैकेबल। ठीक है, तो सिस्टम को डाउन लाइक यू नीड टू बी अपडेटेड विद द वर्जन्स। देन इज इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब इंस्टॉल करना है। रैंसमवेयर को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे अदर टूल्स भी चाहिए, जैसे इंक्रिप्टिंग टूल्स चाहिए या फिर कुछ पेलोड्स चाहिए। तो इंस्टॉलेशन जो बाकी सारी भी आपके सिस्टम में थिंग्स है जो उस पेलोड को रन करने के लिए चाहिए, तो वी नीड टू हैव टू इंस्टॉल दैट इन योर सिस्टम। आफ्टर दैट अगर सिस्टम में इंस्टॉल होगी तो मेरे को एक्सेस भी तो चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपके सिस्टम में ट्रोजन डाला है, ठीक है, ट्रोजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मालवेयर। उसमें क्या होता है कि आई कैन सी वॉट एवर यू आर डूइंग, ओके, और आई कैन एक्सेस योर सिस्टम लाइक जैसे रिमोट डेस्कटॉप्स है, ठीक है, तो मैं आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकती हूँ। मैं सिस्टम को तब भी एक्सेस कर सकती हूँ, स्क्रीन को तब भी देख सकती हूँ ना जब तक आपका सिस्टम ओपन है। अगर आपका सिस्टम बंद हो गया तो इट वोंट बी एबल कि आई एम नॉट एबल टू सी इट। ओके, दैट्स वाई वी हैव इंस्टॉलेशन, कि मेरे को इंस्टॉल भी करना है और मेरे को तब तक मेंटेन करके रखना है जब तक आपका सिस्टम ओपन है। ठीक है, मेन पॉइंट। नाउ आई एम ऑडिबल। Yes, ma'am. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इंक्रिप्शन, कि हमें डाटा को इंक्रिप्ट करना है। रैंसमवेयर हमने डिलीवर कर दिया, एक्सप्लॉइट कर लिया, उसके बाद इंस्टॉल भी कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद रैंसमवेयर क्या करता है, रैंसमवेयर डाटा को इंक्रिप्ट करता है। और इंक्रिप्शन में आपके अकॉर्डिंग डाटा किस इंक्रिप्शन फॉर्म में होगा, एसिमेट्रिक कि सिमेट्रिक? हमने टू टाइप्स पढ़ी है ना, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। तो डाटा किस रैंसमवेयर के केस में डाटा किस बेसिस पे इंक्रिप्ट होगा, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करेगा कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करेगा? मोहन, नवनीत। Ma'am, symmetric. ओके, रीजन वाई सिमेट्रिक? नवनीत, इट्स सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक? I don't have any idea about it. Sorry. सो रैंसमवेयर जो इंक्रिप्शन टाइप यूज़ करता है दैट इज़ एसिमेट्रिक, बिकॉज अगर वो सिमेट्रिक ही यूज़ करता होता तो एक ही पब्लिक की है। सिमेट्रिक में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास एक ही की है जो अवेलेबल है इंटरनेट पे। अगर की ही अवेलेबल है इंटरनेट पे तो डाटा इंक्रिप्ट कर लेगा तो हम तो इजीली डिक्रिप्ट कर लेंगे, कहीं ना कहीं से तो पब्लिक की मिल ही जाएगी कि अगर उसने इंक्रिप्ट किया। बट जो रैंसमवेयर है दैट डोंट यूज सिमेट्रिक, दैट यूज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, बिकॉज उसके पास प्राइवेट की है जो सिर्फ और सिर्फ उसके पास ही है। तो अगर उसको इंक्रिप्ट करना है तो वो प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करेगा, ताकि अगर वो रैंसम मांगे भी तो उसको रैंसम के बदले में एक डिक्रिप्शन की देनी पड़ेगी। अगर उसने रैंसम मांगी, अगर पब्लिक की यूज़ की है तो इजीली यूज़र पब्लिक की ढूंढ के किसी ना किसी तरीके से उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, अगर प्राइवेट की है यूज़ की है तो इट मीन्स ही द अदर पर्सन जिसके सिस्टम में रैंसमवेयर गया उसको प्राइवेट की चाहिए फॉर डिक्रिप्शन। तो अगर प्राइवेट की चाहिए तो उसको रैंसम पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंक्रिप्शन तो रैंसमवेयर का जो कोर है दैट इज इंक्रिप्शन। ठीक है, कि विक्टिम की फाइल्स को इनएक्सेसिबल बना देता है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, फोटोज एंड डाटाबेसेस, कि सबको इंक्रिप्ट करता है। एवरीथिंग इज इंक्रिप्टेड व्हेन रैंसमवेयर कम्स। अब रैंसमवेयर जब आ जाता है तो व्हाट इट डूज, इट शोज अ रैंसम नोट।
जिसमें क्या लिखा होता है कि आपके कंप्यूटर को क्या हुआ है, ठीक है, योर इंपॉर्टेंट फाइल्स आर इनक्रिप्टेड। मेन लिखा आता है कि अगर आप जब आपका कंप्यूटर की एक तो बैकग्राउंड चेंज होता है, ठीक है, देन दिस नोट विल बी देयर जिसमें लिखा होता है कि आपके कंप्यूटर को क्या हुआ है, योर फाइल्स हैव बीन इंक्रिप्टेड। एंड इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कैन आई रिकवर माई फाइल्स, कि मैं अपनी फाइल्स को रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि अगर आप 3 डेज में पेमेंट कर दोगे तो वी विल गिव यू डिक्रिप्शन की। अगर आप 7 डेज में पेमेंट, इफ़ यू डोंट पे इन टू 7 डेज तो आपकी सारी फाइल्स डिलीट हो जाएगी, आप रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ होती है कि अगर आप प्राइस को नहीं पे कर पाए तो प्राइस डबल हो जाएगा। हाउ डू आई पे, कि कैसे पे करना, ठीक है। तो जो सारी पेमेंट्स होती हैं दैट इज़ इनटू अ बिटकॉइंस, क्योंकि अनोनिमस बनाना है कि हमें नहीं ट्रैक होना कि हमारे अकाउंट में पेमेंट आई है, ठीक है, मैंने रैंसमवेयर डाला है, तो जो सारी होगी लाइक ट्रांजेक्शन होगी वो सारी बिटकॉइंस में होगी। तो देन यू हैव अ चेक पेमेंट और डिक्रिप्ट, कि अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपको डिक्रिप्शन की मिल जाएगी, तो आप वो डिक्रिप्शन की को एंटर करोगे तो आपका सारा सिस्टम जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइक दीज आर दी थिंग्स दे जस्ट यूज टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव कि पेमेंट विल बी रेज्ड आफ्टर व्हाट टाइम और योर विल फाइल्स विल बी लॉस्ट ऑन व्हाट टाइम, ठीक है। तो ऐसे करके एक रैंसम नोट आपके सिस्टम पे आ जाता है, ठीक है। और इस लाइक अगर आप ट्राई करो तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डिक्रिप्ट इट और टू शट डाउन इट और टू टेक इट टू समवन कि हाँ भाई, क्योंकि इसमें लिखा होता है कि इफ़ यू गो टू दी पुलिस और इफ़ यू गो टू दी डिपार्टमेंट्स तो आपका जो डाटा है वो हम परमानेंटली डिलीट कर देंगे, ठीक है। लास्ट, व्हेन यू गिव द पेमेंट देन दे विल गिव यू अ की, तो उस की को यूज़ करके आप अपने डाटा को डिक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। माय क्वेश्चन इज़ कि अगर आपने डिक्रिप्ट कर लिया, एक बार डाटा आपने डिक्रिप्ट कर लिया, तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। मोहन, नवनीत। We can raise a report about it or just go to the cyber, ओके yeah, cyber cell. ओके मोहन, वुड यू यूज़ दैट सिस्टम अगेन, आप अपने सिस्टम को दोबारा यूज़ करोगे। Uh, no, we can just erase everything. अगर आपको एरेज ही करना तो आपको एरेज ही करना है तो आप पेमेंट क्यों कर रहे हो। तो क्वेश्चन इज कि अगर सिस्टम अरेज ही करना है, सिस्टम को फॉर्मेट ही करना है, तो हम सिस्टम को पेमेंट के बिना भी तो फॉर्मेट कर ही सकते हैं ना, कि अगर हमें डाटा ज़रूरी नहीं है तो हम पेमेंट क्यों कर रहे हैं। If data is important, then we can retrieve the data and then just we can go to the cyber cell and take their help and just erase the everything in the system and track them. यस, द थिंग इज कि आपके पास सिस्टम जब डिक्रिप्ट हो गया तो देन द सेकंड पोर्शन सेकंड पार्ट विल कम दैट कि जो डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको बैकअप करो एंड देन गो टू दिस लाइक रिफॉर्म लाइक सिस्टम को फॉर्मेट कर दो या फिर डिलीट कर दो। सेकंड पोर्शन सेकंड थिंग इज कि आप अपने डाटा का बैकअप रखो, ऑलवेज टेक अ बैकअप ऑफ योर डाटा, कि अगर बाई चांस आपके सिस्टम में कोई मालवेयर आ भी जाता है तो आपके पास एक बैकअप सिस्टम हो, जिससे बैकअप सिस्टम हो या बैकअप फाइल्स हो कि जिससे आपको ऐसे रैंसमवेयर को पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वन इज नेवर ट्राई टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम थर्ड पार्टी विदाउट विदाउट स्कैनिंग इट, ठीक है। वी हैव अ लॉट ऑफ स्कैनिंग टूल्स जिसपे आप स्कैन कर सकते हो कि वो जो डाटा है दैट जो सॉफ्टवेयर है दैट आर मलिशियस और नॉट, ठीक है। थर्ड, अगर मलिशियस सॉफ्टवेयर कोई अगर आपने कोई डाउनलोड कर ही लिया है तो देन यूज़ वीएम टू रन इट। आप वीएम में लिनक्स के अलावा विंडोज़ भी डाल सकते हो, इट्स नॉट कि आप वीएम में सिर्फ लिनक्स के ही वर्जन डाल सकते हो, आप लिनक्स में वीएम में आप डिफरेंट विंडोज़ भी डाल सकते हो। उस विंडो में उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, रन करके चेक करो कि अगर उसमें मालवेयर नहीं है, एवरीथिंग वर्क्स गुड, देन मेन सिस्टम में डाउनलोड कर लो, अदरवाइज डोंट डू इट, ठीक है। वी हैव अ वेरी केस
लाइक इफ़ यू हर्ड अबाउट इट, रैंसमवेयर में WannaCry करके एक बहुत बड़ा रैंसमवेयर था जिसने बहुत सारे सिस्टम्स को इन्फेक्ट किया. इट वॉज दी लाइक कि उसने फेडेक्स से लेके एवरी जो बड़ी कंपनी है उसको लाइक इन्फेक्ट किया. उसमें क्या था दैट इट इज़ अ लाइक स्टोरी लाइक कि इटर्नल ब्लू करके एक वर्नेबिलिटी आउट हुई थी. वो कैसे आउट हुई थी कि जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को हैक किया गया था बाय दी शेडो ब्रोकर्स. शेडो ब्रोकर्स एक यू कैन से दैट रैंसम लाइक इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हैकर्स जो अभी तक इनके एक्चुअल नेम किसी को नहीं पता, बट दे themselves known as शेडो ब्रोकर्स. शेडो ब्रोकर्स ने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को हैक किया था एंड दे पुट दैट वी हैव हैक्ड द नेशनल एजेंसी एंड वी हैव देयर डाटास. लाइक जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटाज हैं उनके, वी हैव दैट एंड वी आर डिमांडिंग दिस काइंड ऑफ अमाउंट. बिटकॉइंस में मांग रहे थे कि अगर हमको ये मिलेगा तो हम उसको दे देंगे. बट द एवरीवन थिंग्स कि यार इट इज़ अ फेक, कि नेशनल सिक्योरिटी को कौन हैक कर सकता है, ऐसा तो ये फेक कर रहे हैं, सिर्फ बिटकॉइंस को लेने के लिए कर रहे हैं या करेंसीज को लेने के लिए कर रहे हैं. देन दे व्हाट दे डिड इज दे लीक्ड सम ऑफ द डाटा ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जिसमें उन्होंने किया था इटर्नल ब्लू करके एक डाटा लीक किया था. उसमें क्या था कि विंडोज सर्वर मैसेजेस ब्लॉक, SMB प्रोटोकॉल होता है एक, ठीक है, सर्वर मैसेजेस ब्लॉक प्रोटोकॉल है, ठीक है. उसमें क्या था कि आपके विंडोज़ में ना उस टाइम पे विंडोज़ पे एक वर्नेबिलिटी निकली थी कि अगर आप जब भी सर्वर से कम्युनिकेशन करते हो ना तो विंडोज़ उसको देख सकती थी कि आप क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, आप कौन सी नेट पे इंटरनेट पे उसको लाइक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, किस तरह एक्सेस कर रहे हो. तो उसको यूज़ करके ना जो WannaCry रैंसमवेयर वाले थे उन्होंने WannaCry रैंसमवेयर क्रिएट किया. उसमें बहुत सारी कंपनीज थी जो सारी गई. इट वॉज रिलीज ऑन May 12, 2017. रैंसमवेयर था, ठीक है, जो इंटरनल ब्लू की वर्नेबिलिटी आई थी माइक्रोसॉफ्ट में, उसको यूज़ करके इन्होंने क्रिएट किया था. 23 लाइक 2,30,000 से अबव कंप्यूटर्स को इन्होंने इफेक्ट किया था इन लाइक विद इन अ वीक. ये सारे इफेक्टेड थे, ठीक है. कंप्यूटर में इनक्रिप्ट किए गए थे सारे और बिटकॉइंस में डिमांड की गई थी, ठीक है. यूके की लाइक नेशनल हेल्थ थी, फेडेक्स थी, टेलीफोनिक थी, सारी जो सारी कंपनीज थी ये सब इसमें WannaCry में रैंसमवेयर में इनके कंप्यूटर्स को इनक्रिप्ट किया गया था, ठीक है. इसकी मिटिगेशन क्या थी कि इसको सॉल्व कैसे किया गया. एक तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने रिलीज़ को सही किया, उन्होंने उसका पैच निकाला. दूसरा था कि एक बंदा था, उसने क्या किया, उसने रैंसमवेयर जो था उसकी एक कॉपी निकाली और उसको सर्च करना शुरू किया कि वो कर क्या रहा है. तो बेसिकली क्या हो रहा था, रैंसमवेयर एक लिंक पे जा रहा था, मतलब एक उन्होंने लिंक बाय किया हुआ था, उस लिंक पे जा रहा था, तो उस लिंक पे क्लिक करने पे आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ रहा था. तो उस साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने क्या किया कि उसने वो लिंक डोमेन नेम ज़्यादा अमाउंट देके खुद ले लिया, तो वहाँ से वो डाउन हो गया. तो किल स्विच करके एक डोमेन था, उसको उसने किल कर दिया, डोमेन को स्विच कर दिया. सो इट्स बेसिकली लाइक कि जो WannaCry रैंसमवेयर सिस्टम जो डिलीवर हुआ था दैट वाज डिलीवर्ड थ्रू अ मलिशियस लिंक, ठीक है. दिस वाज द स्टोरी ऑफ द रैंसमवेयर और WannaCry एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक. ऐसे करके एक EXE फाइल है, ठीक है, जो हमने लाइक सिस्टम में इंस्टॉल की थी. लाइक इट्स जस्ट टू ट्राई एंड ये VM में की हुई है, आप अपने एक्चुअल फाइल में नहीं, आप अपने एक्चुअल मशीन में नहीं करोगे बिकॉज इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है. तो इस करके जैसे रन हुआ देन यू हैव दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड कि ओप्स योर ऑल दी फाइल्स हैव बीन इंक्रिप्टेड, ठीक है. एंड जब ये सब आ जाएगा तो आपके पास एक रैंसम नोट भी आ जाता है, ठीक है. दिस वॉज जस्ट फॉर दी लाइक काइंड ऑफ यू कैन से दैट कि हमने ये में रन करके दिखाया था कि WannaCry व्हाट इज़ WannaCry एंड हाउ इट वर्क्स. तो ऐसे करके रैंसमवेयर था कि आपको चेक पेमेंट करके यहाँ से पेमेंट करनी थी. दिस वॉज दी टर्म्स एंड कंडीशंस दैट वर देयर, ठीक है. एंड आफ्टर दैट इफ़ यू पे दे विल गिव यू अ डिक्रिप्शन की एंड यू कैन डिक्रिप्ट इट, ठीक है.
I have provided you with this link also. It's basically a documentary, or it's basically a story that how hack was done and how it was mitigated, कि किसने इसको mitigate किया था, क्यों किया था, and उसका नाम reveal क्यों नहीं किया गया, और उसको like the person who take down the WannaCry ransomware was actually into a some another kind of criminal activity, so उसको credit नहीं मिला था. You can watch this documentary. It is a good way to know about ransomware attacks and WannaCry attack. Okay. Anybody have any doubt? क्रिप्टो में, क्रिप्टोग्राफी में, हैशिंग में, इसमें ट्रिक में जो WannaCry में सिमेट्रिक यूज़ हुई थी, दैट वाज RSA. जो हमने यूज़ की थी ना, RSA यूज़ करके हमने वो डाटा को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया था. रेंसमवेयर में भी वही वाली RSA टाइप यूज़ हुआ था फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. यस. मैम जैसे हम लोग अपडेट उठाते हैं सॉफ्टवेयर के लैपटॉप में नहीं फोन में इसमें, तो उसमें हम लोग तो जब हम लोग वर्जन को अपडेट करते हैं फोन में लैपटॉप, तो उसमें बग क्यों आता है? जो डेवलपर है ना, द डेवलपर ऑलवेज मेक अ मिस्टेक. इट्स नॉट लाइक कि डेवलपर हमेशा परफेक्ट होता है. इट्स बेसिकली कि डेवलपर्स मिस्टेक करने के लिए बनते हैं. टेस्टिंग जो यूनिट होती है वो टेस्टिंग के लिए बनती है. सो इफ़ एनीबडी फाउंड अ बग, यू ऑलवेज सी दैट अगर अपडेट निकलता भी है ना कोई, तो उससे पहले उसका बेटा वर्जन या डेवलपर वर्जन निकलता है. डू यू एवर चेक इट? यस. हाँ. तो वो बेटा वर्जन और डेवलपर वर्जन इसीलिए निकलता है कि वो हैकर्स को, जो टेस्टर्स हैं, उनको देते हैं कि आप टेस्ट करके देखो कि इसमें कोई बग तो नहीं है. बग्स ऐसे हैं कि अगर आपके सिस्टम जैसे कोई नया वर्जन है या कुछ है, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी डेवलपर ने कोड लिखा होता है जिसको रिवर्स किया जा सकता है. लाइक इट्स कॉल्ड अ रिवर्स इंजीनियरिंग, कि जिसको रिवर्स करके उसमें बग ढूंढा जा सकता है. इसलिए हमेशा अपडेट्स जो होते हैं, हमेशा इट्स सेड दैट कि अगर आप अपने सिस्टम में खुद के फ़ोन में कर रहे हो तो ऑलवेज डू अ परफेक्ट वर्जन. अगर आपके पास एक और फ़ोन है, लाइक ऑल्टरनेटिव फ़ोन है, तो आप बेटा वर्जन यूज़ कर सकते हो. बेटा वर्जन यूज़ करके उसमें ट्राई कर सकते हो. अगर आपको कोई बग मिल रहा है या आपको कोई लाइक चीज़ मिल रही है जिससे आप उसको हैक कर सकते हो या उसमें कोई ना कोई चेंजेस कर सकते हो, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो. दे पे यू फॉर दैट. सो इसीलिए वो पहले बेटा और डेवलपर वर्जन निकालते हैं. जैसे अब iOS 18 आ रहा है, तो iOS 18 का बेटा वर्जन निकल चुका है, डेवलपर वर्जन निकल चुका है. कि वो कह रहे हैं कि आपके पास महीना 2 महीने हैं कि जब तक हम लेटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, यू कैन ट्राई इट. ठीक है, बेटा वर्जन्स पे हर तरीके से ट्राई करो कि इसमें कोई चेंज तो नहीं हो सकता, इसमें कोई बग तो नहीं है, इसमें कोई वर्नेबिलिटी तो नहीं है. कि अगर नहीं है देन दे विल रिलीज इट, अदरवाइज दे हैव टू चेंज दैट. कोई और क्वेश्चन? आपने कल वाली एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली थी मोहन? Did you try to complete the yesterday's activity? मैम आई हैव ट्राइड, स्टिल लिटिल बिट इज देयर. Okay, so you can complete in this next hour. And today's activities will be this. I have given you the ciphertext. I have given you the public key and I have given you the private key. You need to decrypt this. You need to make a plain text out of this ciphertext. ठीक है. आप इस दोनों तरीके यूज़ करोगे. आप लाइक ऑनलाइन टूल भी यूज़ करोगे, आप ऑफलाइन लाइक CLI यूज़ भी करोगे, दैट इज़ OpenSSL. दोनों यूज़ करके इसका साइफर टेक्स्ट का प्लेन टेक्स्ट निकालोगे. एंड आई हैव गिवन यू दी पब्लिक की एंड प्राइवेट की. जो ये साइफर टेक्स्ट है इसको मैंने प्राइवेट की लाइक डिक्रिप्ट किया यूजिंग दी प्राइवेट की. तो आप देखना कि इनक्रिप्ट पब्लिक की से होगा कि प्राइवेट की से होगा. ठीक है. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. I have given you the plain text, that is ethical hacking. You need to convert this into the encrypted text. यूज़ क्या करना है? पब्लिक की यूज़ करनी है. ठीक है. और प्राइवेट की से हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे. So you need to use it and you need to use both OpenSSL. दोनों में करना है, दोनों को दोनों में करना है. OpenSSL में भी करना है और उसमें भी करना है, ऑनलाइन टूल में भी.